بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری زاہد وڑیچ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو میں نے سوچا یہ سینٹ کا الیکشن ہوا، اس سے پہلے وہ کافی شور شرابہ ہوا، تو عوام بھی ظاہر ہے یہی باتیں کرتی ہے، پھر جب ایسی ہلچل ہوتی ہے تو میں نے سوچا آج میں بھی ایک پروگرام کروں، کیونکہ میں نے عوام سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کو ان کا پورا جو ہے نا بایو ڈیٹا دوں گا۔ تو میرے ریسورسز صرف ہوتی ہے عوام میں میں باتیں کرتا ہوں، گھل ملتا ہوں، تو ان سے میں اخذ کرتا ہوں، نتیجہ ایک نکالتا ہوں کہ عوام اگر یہ باتیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اتنا ہی ہے۔ تو آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ کا اپنی رائے ہے۔ لیکن آج ریاستی اداروں کے لیے، ریاست کے لیے، اس میں آپ کہہ لیں کہ ادارے بھی آ جاتے ہیں اور گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور عوام کے لیے، دونوں کے لیے ایک میرا آج سوال ہوگا، اور یہ سوال ذرا کڑوا ہوگا لیکن آپ نے اس پہ سوچنا ضرور ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، دونوں سے، عوام سے بھی اور ریاست سے بھی۔ اب جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو کیمرے کی سٹوری سامنے آئی ہے، اب آپ ساری دنیا جانتی ہے، یہ میں اپنے پاس سے تو انفارمیشن نہیں دے رہا کہ ہمارا جو مطلب ہماری جو فوج ہے، افواج ہے، پاک آرمی ہے جو ہے، اس کا ادارہ جو ہے وہ دنیا کے نمبر 10 پہ اس کا نام آتا ہے۔ وہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جو کیمرہ لگا ہوا تھا ادھر سینٹ کے الیکشن کے دوران بوتھ میں، وہ کیا اتنا گیا گزرا ہماری فوج ہے کہ وہ ایسا کیمرہ لگائے گی کہ مثال کے طور پہ 2 آدمی، ایک مطلب نواز کھوکھر اور دوسرا نون لیگ کا بندہ جائے گا اور ساری وائر بھی پکڑ لے گا اور کیمرہ بھی پکڑ لے گا؟ کیا اتنی گئی گزری ہماری مطلب ادارے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں؟ یہ اور دوسرا، اگر کسی ادارے نے ایسا کیا ہے تو اس کو فی الفور جو ہے نا زبردوز کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اتنا بونڈا طریقہ استعمال کیا ہے کہ مطلب 2 آدمی پرائیویٹ جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ خود بخود سامنے آئیں گے، ایٹومیٹک سامنے آئیں گے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جب غلط کام کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، جتنے مرضی وہ چکر لگا لے، جہاں سے مرضی گھوم کے آئے، آنا اس نے ادھر ہی ہے جدھر زبردوز ہونا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یقین ہے اور آپ کو ہوتا نظر آئے گا۔ اب دیکھ لیں ان کی جو چال تھی، وہ کیمرہ پکڑا گیا، وہ کیمرے کے شور و گل ہوا۔ اب ایسی تحقیق ہونی چاہیے جو عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ کس بندے نے یہ کام کیا۔ جس بندے نے بھی کام کیا اس کو پکڑ کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اب عوام یہ سوچ رہی ہے کہ اب نورا کشتی تو نہیں ہو رہی کہ جن کی مرضی سے نواز شریف باہر گیا ہے، جن کی مرضی سے عدالت سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ نون لیگ جو مطلب افواج پاکستان کے پے در پے ان پہ کیچڑ اچھاڑ رہی ہے اور پے در پے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ عوام اب چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ آپ سے ریکویسٹ ہے عوام کی کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، عوام بتا رہی ہے کہ جس بندے نے بھی ان لوگوں کا غلط کا ساتھ دینا ہے اس نے خود ساتھ زبردوز ہو جانا ہے، وہاں وہ کوئی بھی ہو، ہاں وہ عمران خان کیوں نہ ہو، کیونکہ جو غلط کا ساتھ دے گا وہ اب نہیں بچے گا۔ اب ٹائم ایسا آ گیا کہ جس ٹائم پہ آپ کسی کو بچانے کی بجائے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو سمجھو آپ نے سب کچھ کر لیا۔ اس وقت دوسروں کو بچانے کی مت سوچیں کہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے ڈیل کی ہے، مثال وام پوچھتی ہے سوال کہ اگر آپ نے ڈیل کر ہی لی ہے، ایسا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ ہم پیسے واپس لائیں گے، اگر انہوں نے وعدہ کیا تو ان سے پیسے واپس لو۔ جب پیسے واپس آئیں گے تو عوام کو ریلیز ملے گا۔ ریلیز کس شکل میں ملے گا؟ مہنگائی میں کمی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر نئے دن مہنگائی جو ہے اوپر جا رہی ہے اور لوگوں کا جو روزگار نہیں ہے
ऊपर से ये कोरोना वायरस ने भी लोगों को घबराया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने वादा ही लिया है, उनसे आप छूट दे ही रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उनसे माल तो वापस ले। वाम कहती है वाम तो पैसा तो वापस लाओ, और पैसा ज़बानी नफ़ी तकरीब से नहीं होगा, जमा तफरीक से। वो ऐसे होगा जब आएगा तो वाम को रिलीज़ मिलेगा किस शक्ल में? महंगाई में कमी होगी, बिजली के बिल कम होंगे, घी की कीमत कम होगी, चीनी की कीमत कम होगी। अब ये सवाल है वाम का इमरान खान साहब से कि आप कहते थे कि मेरी पार्लियामेंट में सेनेट में अक्सरियत नहीं है, इसलिए मैं कोई कानून बना ही नहीं सकता। जब मैं कानून कोई बना नहीं सकता तो मैं अवाम को कैसे रिलीज़ दे सकता हूँ? अब आपको अल्लाह ने वो मौका दे दिया है। अब आपके पास कोई उज़र नहीं है कि आप इनको क्यों छोड़ रहे हैं, या क्यों महंगाई ज़्यादा हो रही है, या क्यों लोगों को रिलीज़ नहीं मिल रहा। अब वक्त आ गया है इमरान खान साहब, अब वक्त आ गया है कि आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। वो प्रैक्टिकल क्या है कि जब रिलीज़ मिलेगा आवाम को, बातों से नहीं। अवाम बातों की सुन के बातें अवाम के कान थक गए हैं। अब प्रैक्टिकल होना चाहिए, इनसे पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना तो इनको बिल्कुल वही सलूक जो एक आम चोर और चक्के के साथ होता है, यानी उसको कोई ज़मानत नहीं मिलती, उसको कोई रिलीज़ नहीं मिलता, उसको कोई छूट नहीं मिलती, इनको भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जिसके साथ ज्यादती हुई है वो कहती है कि कम अज़ कम इनको सज़ा तो मिले। अगर सज़ा नहीं मिलनी तो ये माल तो दे वापस, माल भी नहीं दे रहे, सज़ा भी नहीं आप इनको दे रहे, तो फिर अवाम, इसका मतलब है अवाम नहीं सबको दबरदूस करना है। रियासती इदारों के लिए ये चैलेंज है कि उनके पास एक ही उज़र था कि एक ही वो बार बार रट्टा लगाते थे कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है कि हम कानून बना सकें। अब जो भी आपने करना है वो प्रैक्टिकल करना है और अवाम को उसका सिला मिलना चाहिए। ये छोड़ दें ये कैमरा किसने लगाया, ये वोट कैसे मतलब जाली निकले, ये सब कुछ चलता रहेगा, इसको छोड़ दें। अब फोकस करें कि अवाम को रिलीज़ कैसे देना है, और अगर रिलीज़ नहीं देना, उनने पैसा वापस नहीं देना, तो उनको सज़ा कैसे देनी है, इसका रिजल्ट सामने आना चाहिए दोनों बातों का। और अवाम के लिए ये एक सवाल चुभता हुआ है कि आप, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि मुझे एक बंदे ने सिफारिश करके किसी जगह पे पॉइंट किया है, तो अब मेरा भी हक बनता है कि जब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पूरी अवाम ने, उसका तर्जमा ये बनता है कि जहाँ जहाँ पे भी आप मुलाजमत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप ओहदे पे फायज़ हैं, आप खुदारा होश के नाहल लें, अब पैसा लेना छोड़ दें और लोगों को रिलीज़ दें और अपनी सही ड्यूटी अदा करें। क्योंकि आपने अगर दबरदूस होने से इन लोगों के साथ मतलब दबरदूस साथ ही होना, तो फिर तो नो प्रॉब्लम, फिर तो आप करते जाएं करप्शन जितनी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि आवाम देखेगी कि कैसे आप बच सकते हैं। इसलिए आम मुलाजम को भी अब सोचने की ज़रूरत है कि वो तैयार ये करे कि हाँ भाई, इस बंदे ने मेरी सिफारिश की थी, मुझे पॉइंट किया है, जैसे भी किया है, जैसे भी इसने मुझे नौकरी दिलवाई है, लेकिन अब मैंने गलत काम नहीं करना। अब ये मिसाल छोड़ दें कि मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हर बंदा दूसरा कहता है तो यार वो फलां बंदे की पेश नहीं जा रही है इसलिए बातें कर रहा है, अगर उसकी पेश जाएगी तो वो भी करेगा। इस उज़र को आप निकाल मारे बाहर, इसको छोड़ दें। आपने सिर्फ अपने आप को सही करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे को छोड़ दे वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अपने आप को, जितनी भी बकिया ज़िंदगी बची है, जो पहले आपने गलतियां की हैं उनसे आपने सीखना है। आपने कोशिश करनी है कि मेरी फ़लाँ ड्यूटी है, मैंने सही करनी है। हाँ, मेरे से ये गलतियां हुई हैं, वो अपने ज़मीर के अंदर बात करे कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं, मैं इंशाल्लाह आगे ये गलती नहीं करूँगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, किसी से पैसे नहीं लूँगा, किसी से रिश्वत नहीं लूँगा, किसी का गलत काम नहीं करूँगा। इसलिए हर बंदे ने अब इसमें हिस्सा डालना है, और हिस्सा ऐसे नहीं डलता कि आप बातों से करते जाएं कि ठीक है भाई, वो मिसाल है कि अगर मैं ले रहा हूँ तो वो बातें कर रहा है तो वो भी तो ले रहा है। इससे आप दबरदूस होने से नहीं बच सकते।
इसलिए आवाम को भी अब चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगी है, जहाँ जहाँ पे भी इनकी पेश जा रही है, जहाँ जहाँ पे भी ये अपना हिस्सा रियासत के आगे जाने में डाल सकते हैं, इनको डालना चाहिए, हर बंदे को डालना चाहिए, क्योंकि रियासत ने अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाना ही जाना है। ये अटल है, ये मेरा यकीन है, इंशाअल्लाह ताला रियासत ने आगे जाना ही जाना है। और जिस जिस बंदे ने, हाँ वो क्यों चौकीदार क्यों नहीं है, हाँ वो आम दर्जा चारम का मुलाजम क्यों नहीं है, जिस जिस बंदे ने भी अब इसमें गलत काम करना है, उसने जबरदूस होने से नहीं बचना। जहाँ जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर है, जहाँ पे भी है, उसने जो गलतियाँ कर ली उसको कर ली। अब तैयार कर ले कि हमने रियासत के साथ चलना है, हमने इसको आगे लेकर जाना है, इसलिए हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं वो दोबारा हम नहीं करेंगे। इसलिए अभी वक्त है, क्योंकि पूरी दुनिया बुरान में आ गई है, और इस बुरान में से सिर्फ वही बचेगा जो सही रास्ते पर चलेगा, जो मिसालें देगा वो भी कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इससे वो नहीं बचेगा, इससे वो उससे ज़्यादा दबरदूस होगा, ये मेरा यकीन है। इसलिए इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार भी करें, तो और जो बंदा गलत कर रहा है उसको एक्सपोज भी करें, उसको नशर करें कि ये आदमी गलत कर रहा है। हो सकता है आपके एक्सपोज करने से वो आदमी बाज आ जाए, वो गलती छोड़ दे। अगर वो गलती छोड़ देगा तो आप समझे आपने रियासत के आगे जाने में हिस्सा डाल लिया है। इसी बात पे मैं बात ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला नाम लेकर आपको बताऊँगा कि कौन कौन क्या कर रहा है। और मेरा ये यकीन है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। जो बंदा भी गलत बंदे का इस टाइम पे साथ देगा वो दबरदूस होने से नहीं बचेगा, वो खुद कटहरे में आएगा, उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब जाते जाते एक बात लोगों ने बार बार पूछी है कि अभी कह रहे हैं कि नून लीग ने उनको वोट नहीं दिया, जबकि वो इकट्ठे चल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो आपस में मिल के इतने सालों तक गवर्नमेंट करते रहे हैं, तो अब उन्होंने क्यों नहीं एक दूसरे को वोट दिया? ऐसे है, इसकी सादा सी मिसाल है, आप ज़हन में रखें, हर बंदे को इसकी समझ आएगी जो मैं मिसाल देने लगा हूँ। दो डकैत हैं, वो चोरी करते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो दोनों मुखलस रहेंगे आपस में? क्योंकि वो 2 नंबर है, इसलिए हर कोई कोशिश करेगा कि ये माल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आए। इसी तरह ये ओहदे थे, नून लीग के पास कुछ भी नहीं था, मौलाना फजल रहमान के पास था और जरदारी साहब के पास था। क्या ख्याल है? तो इससे नून लीग खुश थी? नहीं खुश थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सारा काम करें और जो सेहरा इनके सर पे बांध दें इतनी तरद्दुद करने के बाद। इसलिए उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और ये दे सकते भी नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर जो लोग होते हैं ना, ये आखिर में एक दूसरे को पकड़वाते हैं। ये पहले केस जितने बने हुए हैं एक दूसरे पे नहीं इन्होंने बनाए हुए। अगर आपस में ये मिल के चल रहे थे तो इनको क्या ज़रूरत थी वो केस बनाने की? इनको पता नहीं था कि कल को सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप डकैती करते हैं तो आप एक दूसरे को दांव लगाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ आप होशियारी करने की सोचते हैं। जिधर आप होशियारी करते हैं उधर ही पकड़े जाते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है कि होश के नाखिल ने आम आदमी से भी मेरी इल्तमास है, दुरख्वास्त है कि दारू से भी, गवर्नमेंट से भी, इमरान खान साहब से भी अब वक्त आ गया है कि हर बंदा रियासत को आगे जाने की सोच के साथ चले, ना कि रियासत को पीछे धकेलने की सोच में चले। जो भी आदमी रियासत को पीछे धकेलने की सोच में चलेगा, हाँ वो आम आदमी है, वो दबरदूस होने से इस वक्त नहीं बच सकता। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।